Okay, so this is the projectile motion. Next is the circular motion. You know that circular motion of an object along the circumference of a circle is called a circular motion. The helicopter moves along a circular path. And another type of motion is rotational motion. Rotational motion also study in the rotational motion and the system of particles, chapter number 7. Earth rotate. You know that Earth rotate. 1 minute. You know that Earth rotate about its own axis. This is the example of rotational motion. Rotational motion is a circular movement of an object around a center or axis of rotation. Okay. Another, this is the oscillatory motion or oscillation. In this chapter, we will discuss about the oscillatory motion, okay, or oscillation. In this chapter, we will study about the oscillatory motion or oscillation, okay. First question is that, what is the oscillatory motion? The periodic to and fro motion of an object about its mean position is called an oscillatory motion. The to and fro motion of an object about its mean position is called an oscillatory motion. कोई एग्जांपल बता सकता है? What is the example of oscillatory motion? कोई बता सकता है? What is the example of oscillatory motion? आप लोग प्रैक्टिकल कर चुके हो, कोई बता सकता है? What is the example of oscillatory motion? No? Movement of pendulum. Simple pendulum. बिल्कुल सही. Simple pendulum. You know that motion of simple pendulum is a oscillatory motion. There is to and fro motion of an pendulum about its mean position. Okay, and there are different example of oscillatory motion. In this chapter, we will discuss about the oscillatory motion. Okay. Some example of oscillatory motion like as a swing, tuning fork, spring of mass. You know that motion of a spring is also a oscillatory motion. This is the example of oscillatory motion. Okay. Periodic motion. What is the periodic motion? A motion which repeats itself after a regular interval of time is called periodic motion. A motion which repeats itself after a regular interval of time is called periodic motion. Okay, our oscillatory motion is a periodic motion. Answer is yes. But in some special condition, this is the periodic. Okay, all oscillatory motion are periodic, but all periodic motion are not oscillatory. Okay, it's clear. All oscillatory motion are periodic, but all periodic motion are not oscillatory. This is the important point about the oscillatory motion. It's clear. अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या oscillatory motion periodic motion होता है, तो आप बताओगे yes. Oscillatory motion are the periodic motion. It repeats its motion in same interval of time. Okay. Some terminologies of oscillatory motion. Oscillatory motion में किन किन terms का use किया जाता है? You know that like frequency, time period, amplitude, phase. इन सब के बारे में आपको oscillatory motion में पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट है मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन. मीन पोजीशन क्या होता है? मीन पोजीशन इज अ पॉइंट about which object is vibrating. Mean position is a point about which object is vibrating. Okay, and there are two extreme position between the both side of mean position. Okay, extreme position
the displacement of the point from mean position is called extreme position. The mean position or the equilibrium position is the point where the net force acting on the particle is zero. Okay. The mean position or the equilibrium position is the point where the net force acting on the particle is zero. ये आप लोग अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मीन पोजीशन, तो आप बताइएगा द मीन पोजीशन और द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज द पॉइंट वेयर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। ओके, ये याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मीन पोजीशन, तो ये आपको इस तरह से बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, next is the extreme position. What is the extreme position? The maximum point up to which the particle oscillates about its mean position is called an extreme position. The maximum point up to which the particle oscillates about its mean position is called an extreme position. Okay? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन से उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर किसी पार्टिकल का या पॉइंट ऑब्जेक्ट का उसके मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। तो मीन पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन, the maximum point up to which the particle oscillates about its mean position is called an extreme position. The maximum displacement of a point object from its mean position is called the extreme position. Okay, I think ये सब तो आप लोग को पता होना चाहिए। डायग्राम में देखो, डायग्राम में एक्सट्रीम पोजीशन को मेंशन किया गया है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन जो है इसका मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट। What is the displacement? The distance covered by a particle performing oscillatory motion at any instant from its mean position is called as displacement. Okay, displacement is a vector quantity and its SI unit is meter and the unit in CGS system is centimeter and dimensional formula is L. Okay, it's clear. The maximum path, एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, I am again repeating. The maximum path of a particle from its mean position is called the displacement. Okay, डायग्राम में देखो, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, x है, एंड दिस इज एट द पॉइंट P। पॉइंट P का मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? The maximum displacement of a particle performing oscillatory motion. The maximum displacement of a particle performing oscillatory motion from its mean position on either side is called an amplitude. Okay? तो amplitude क्या होता है? Maximum displacement. Okay? डायग्राम में देखो, डायग्राम में जैसे ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और जब आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा, एंड दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ओके, इट्स क्लियर, ठीक है। मीन पोजीशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रेंज और पाथ लेंथ। रेंज या पाथ लेंथ क्या होता है? दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, या दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेंज और पाथ लेंथ। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन is called as path length. Range is equal to twice the amplitude. This is 2a. रेंज या पाथ लेंथ कितना होता है? 2a। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखो, देयर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज कॉल्ड रेंज एंड दिस इज 2a। ओके, पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? ये सब आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, आई थिंक 9th या 11th में पढ़े होंगे।
Time taken to complete one oscillation. Time taken to complete one oscillation is called the period of oscillation or time period. Okay. T is equal to क्या होता है 2 pi upon omega. What is omega? Angular frequency. Omega का मतलब होता है angular frequency. Okay. Time period clear है ना? I think ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए time period क्या होता है. ठीक है. सर यहाँ पे ओमेगा मतलब एंगुलर नहीं है. Yes, angular velocity या angular frequency. Angular velocity या angular Okay, frequency omega. T is equal to 2 pi upon omega होता है. It's clear. Time period का unit क्या होगा? Second. Time period का unit क्या होगा? Second. Okay. ठीक है. Next is about frequency. Number of oscillation in 1 second. Number of oscillation of a particle performing oscillatory motion in 1 second is called frequency. Frequency is equal to होता है 1 upon time period. Frequency is equal to होता है 1 upon time period. Okay. Number of oscillation in 1 second is called frequency. It's clear. और frequency का unit क्या होता है? Hertz. चाहे CGS सिस्टम हो चाहे SI सिस्टम हो, दोनों में इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज. ओके. तो ये तो था दिस इज द ऑस्किलेटरी मोशन. अब दूसरा आता है हार्मोनिक मोशन. ठीक है. अब देखो हार्मोनिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन में डिफरेंस क्या होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्किलेटरी मोशन एंड अ हार्मोनिक मोशन? This is the harmonic motion. This is also known as simple harmonic motion. Okay, this is the simple harmonic motion, SHM. Shortcut में इसको SHM बोला जाता है. SHM means a simple harmonic motion. Okay. Harmonic motion. The periodic to and fro motion in which the value of displacement, velocity and acceleration are expressed mathematically as a function of sine or cosine is called an harmonic motion. Okay. So the periodic to and fro motion in which the value of displacement, velocity and acceleration are expressed mathematically as a function of sine or cosine is called as harmonic motion. ठीक है. तो देखो जो हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो होता है इसको साइन थीटा या कॉस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा. हार्मोनिक मोशन में चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट हो, इसको साइन थीटा या कॉस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है. इट्स क्लियर. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द हार्मोनिक मोशन, तो आप बताओगे दिस इज द पीरियोडिक मोशन व्हिच इज अ टू एंड फ्रो मोशन. द पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन in which the value of displacement, velocity and acceleration are expressed mathematically as a function of sine or cosine is called a harmonic motion. Okay. Next is the simple harmonic motion. देखो simple harmonic motion या harmonic motion दोनों सेम चीज होता है. ठीक है. The simplest type of harmonic motion is simple harmonic motion. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल हार्मोनिक मोशन पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जरूर आएगा. सर जो ऑसिलेशन सर उसमें साइन या कोसाइन है. हाँ, साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. तो ऑसिलेशन मोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं ना उसके टर्म्स में. या बिकॉज यू नो दैट ऑसिलेटरी मोशन इज द पार्ट ऑफ हार्मोनिक मोशन. ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है. बस फर्क ये है कि अगर ऑसिलेटरी मोशन अगर सेम टाइम पीरियड में हो रहा है, इफ ऑसिलेटरी मोशन इज इन सेम टाइम पीरियड, देन दिस ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो देखो ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों सेम चीज होता है. बस फर्क ये है कि टाइम पीरियड सेम होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, तो बता कि अगर बीच टाइम इंटरवल सेम तो ऑसिलेशन मोशन, वरना वो अगर टाइम पीरियड सेम है तो हार्मोनिक मोशन.
ठीक है, अगर ऑस्किलेटरी मोशन का टाइम पीरियड सेम है, then this oscillatory motion are called harmonic motion. If oscillatory motion have same time period, then this is called harmonic motion. और अगर टाइम पीरियड अगर सेम नहीं है तब वो हार्मोनिक मोशन नहीं होगा. ओके, और सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली टू टाइप्स का होता है. एक होता है लीनियर एसएचएम और दूसरा होता है एंगुलर एसएचएम. ओके, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग को अपने सिलेबस में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ना है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो देखो यहाँ पे एज एग्जांपल तुम्हें स्प्रिंग दिया हुआ है. स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है. तो व्हेन वी अप्लाई द नेट फोर्स ऑन अ ब्लॉक व्हिच इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, बट ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स it come back to its original position, it come back to its mean position. ओके, तो जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है सपोज राइट में हो रहा है, तो देखो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट में. ध्यान से देखो, डायग्राम पिक्चर सामने दिया हुआ है. रीस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है. इट्स क्लियर, द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स is always opposite to the direction of displacement. Okay, it's clear. ठीक है ना. Displacement and restoring force are in the opposite direction, and we go on increasing that displacement. Restoring force also increases, but in the opposite direction. Okay, F is equal to minus kx. What is the meaning of negative sign? F is equal to minus kx में negative sign का क्या meaning है, कोई बता सकता है? Direction of restoring force is opposite to that of. Yes, correct. बिल्कुल सही. Negative sign indicates that displacement and restoring force are in the opposite direction. Okay, I think ये सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है, next. At this point spring is compressed. Again displacement and restoring force are in the opposite direction. ये देख रहे हो, स्प्रिंग को elongate किया जा रहा है, स्प्रिंग को खींचा जा रहा है. तो सपोज कितने डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, x. तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है देखो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है. ध्यान से देखो, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है. ओके, फर्स्ट केस में elongate किया जा रहा है और सेकेंड केस में कंप्रेस किया जा रहा है. स्प्रिंग को देखो, स्प्रिंग को फर्स्ट केस में elongate किया जा रहा है, हाउ मच डिस्टेंस, x. और सेकेंड केस पे स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट, x. ओके, तो दोनों केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट. ओके, as we go on increasing the displacement, restoring force also increases but in the opposite direction, and the formula of restoring force F is equal to minus kx. Okay, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. रीस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू होता है माइनस kx. k क्या है, कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट. ओके, F is equal to minus kx where k is constant, and this is applying, this formula force is applying when there is a simple harmonic motion. Okay, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हो रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लेंगे, F is equal to minus kx. ओके, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए ना हो तो. ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है. ठीक है, अब देखो कंडीशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन. पहला कंडीशन क्या है, इट शुड बी ऑस्किलेटिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इट शुड बी ऑस्किलेटिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. दूसरा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 एट द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है, 0. तीसरा, फोर्स शुड बी रीस्टोरिंग एंड प्रोपोर्शनल टू x. F is equal to minus kx. There are three important conditions of the simple harmonic motion. Okay, it's clear? आई थिंक समझ में आ गया होगा. ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा. आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ
What is the condition of simple harmonic motion? Okay, ठीक है, आगे बढ़े. Okay. Definition of linear SHM, तो ये तो मैंने बता ही दिया. Linear SHM. Linear SHM is defined as the linear periodic oscillatory motion of a body in which restoring force is always directed toward the mean position. ठीक है. अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि what is the direction of restoring force, तो आप क्या बताओगे? Restoring force always towards the mean position. Okay. Restoring force always towards the mean position. Okay. अगर आपसे पूछा जाएगा कि रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ओके. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. और फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. और के क्या है? के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट. के को बोला जाता है फोर्स कांस्टेंट. हेलो हेलो. हेलो. 1 मिनट एक्चुअल में थोड़ा सा नेटवर्क मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, हम फिर से कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, 1 मिनट वेट कर लीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो चुका है. प्लीज वेट. हाँ ठीक है. तो देखो, तो ये तो था, दिस इज अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब देखो, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन है. ओके, कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ एसएचएम. एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या के क्या होगा? माइनस एफ अपॉन एक्स. के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लीजिएगा. फोर्स कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर, या एम टी टू द पावर माइनस 2. ओके, के का यूनिट क्या होगा? एम टी टू द पावर माइनस 2. और एफ को बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स. इसका हम आप लोग को एग्जांपल थोड़ा समझाते हैं, हम लिख के समझा रहे हैं, उससे आप लोग को थोड़ा ज्यादा बेटर आप लोग समझ पाओगे आई थिंक. जैसे देखो, we consider a simple pendulum. Suppose this is the point of oscillation, इसको बोला जाता है point of oscillation, and this is connected through the thread. इसको thread से connect किया गया है. ठीक है, this is connected through the thread. और suppose मान लो thread का length कितना दिया हुआ है? L. thread का length दिया हुआ है L, like this. ये देखो, this is the thread, ये thread है, और इसका length कितना है? L है. ओके, और बताओ ये ऑब्जेक्ट का क्या है? ये ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन है. सपोज दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस मीन पोजीशन इज m. ये आपका पेंडुलम है, और ये इस पेंडुलम का क्या है? मीन पोजीशन. ठीक है. अब देखो, अब ये वाइब्रेट कर रहा है. ये जो आपका सिंपल पेंडुलम है, ये वाइब्रेट कर रहा है अबाउट द मीन पोजीशन. तो बताओ, देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशन. यू नो दैट देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशन. दिस इज द फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, एंड this is the second extreme position. ठीक है, ये देखो, there are two extreme position, and suppose this extreme position is A and B. इन दोनों extreme position को हम क्या मानेंगे? A and B. okay, suppose this is the extreme position, this is the extreme position A, and this is the extreme position B. okay, this is point A and this is point B, and both point are the extreme position of simple pendulum. okay, and this is vibrating on the both side. This simple pendulum is vibrating on the both side, and you know that how much displacement there is? The displacement is x ना. तो दोनों तरफ बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? x हो रहा है. अब बताओ ये अपने वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है? हाउ मच एंगल? दिस एंगल इज थीटा, एंड यू नो दैट दिस एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल. दिस एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल. ओके, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. अब बताओ रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो x के क्या होगा? अपोजिट होगा. दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स, और ये जो f जो है ये x के क्या है? अपोजिट है. दैट मींस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x.
f is directly proportional to minus x. क्यों? क्योंकि f और x दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ f इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के एक्स. और f क्या होता है? व्हाट इज f? f को क्या बोला जाता है? f को बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, यहाँ पे f को बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स. एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेरिवेशन बताएंगे. वो आपके एग्जाम में आता है, तो इसलिए आप लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर आइएगा. आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालना होगा किसी भी स्प्रिंग का, और फिर आपको प्रूफ करना होगा कि द मोशन ऑफ स्प्रिंग इज अ सिंपल हार्मोनिक या मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक. ये कैसे प्रूव किया जाता है ये हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. कोई डाउट होगा मैसेज कर लीजिएगा. थैंक यू. Thank you, sir. Dear teachers, please come to my office one by one to tell me the homework that was given by Principal Sir yesterday. Please come. If you are free, you can come and tell me and I can jot it down.